کراچی، لاہور، اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ عورت مارچ ہو رہا ہے. کوئی عورت آزاد نہیں ہے جب تک ساری عورتیں آزاد نہیں ہیں. پاکستان میں جو اگر ہم پدر شاہی کو تھوڑا سا ان پیک کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے کیسے ایک طبقے کو جو خواتین ہیں ان کو کنفائن کر دیا نا ان کے رولز بتا کے. عورتیں تو ہماری گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، تو نان ویمن ہے جو مارچ کرتی ہیں. بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، قریانی، ننگ دھڑوں کو پروموٹ کرنا عورت مارچ کہلاتا ہے. ہمارے ملک میں کروڑوں غیرت مند رہتے ہیں اور ہماری ناک کٹوانے کے لیے اس قسم کے فاحشات، متفحشات، بے حیا قسم کی میرا جسم میری مرضی. برقع پوش خواتین عورت مارچ کے خلاف سڑکوں پر آ گئیں. موجودہ دور میں اسلام پر اعتراضات کرنا اور عورت کے حقوق مانگنا دور جاہلیت کی یادگار ہے. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر عورت مارچ شدید بدنظمی کا شکار رہا. انہوں نے اس کے بعد ہمارے آرگنائزرز کے اوپر تشدد کی، ڈاکٹر فرزانہ باری کے اوپر ڈنڈے چلائے. 8 مارچ خواتین کے عالمی دن کو نامناسب اور غیر ضروری نعروں کے ذریعے متنازع بنانے سے بہتر ہے کہ ہم ان کے اصل مسائل کو سامنے لے کر آئیں. پاکستان کی عورتیں بشمول جنوبی ایشیا کی عورتیں، پورا بر صغیر ساؤتھ ایشیا، ہم پچھلے 300-400 سالوں سے جد و جہد بھی کر رہی ہیں، بول بھی رہی ہیں، لکھ بھی رہی ہیں اپنے قلم کے ساتھ، لیکن اندر سے مطالبات وہی ہیں. برابر کے مواقع چاہیے ہمیں، برابر کی تعلیم، برابر کی صحت، برابر کی روزگار، برابر کا معاوضہ، برابر کی ویجز. ہم عقل، سمجھ، فہم، بوجھ رکھتی ہیں، استعمال بھی کرتی ہیں. تو عورت مارچ 2018 میں شروع ہوئی، اس کے پیچھے بہت لمبی اور بھرپور اور روشن تاریخ ہے. عورت مارچ ویسے تو ایک ایونٹ کے طور پہ 8 مارچ والے دن جو کہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے پوری دنیا میں ایک عالمی سطح پہ عورتوں کا دن ہے وہ منایا جاتا ہے. تو پورا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہوتا ہے وہ ریاست کو پیش کیا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو تشدد چھڑانے والی سب سے بڑی قوت جو ہے وہ اکثر سرکار یا ریاست ہوتی ہے. پاکستان کی خواتین کی تحریک نے تو یہی دیکھا ہے. مین اسٹریم میڈیا تو ہے انہی کی پاکٹ میں، تو وہ تو ایک پروگریسو فیمنسٹ ڈسکورس کو سامنے آنے نہیں دیتے. میرا جسم میری مرضی، واٹ از دس؟ خواتین کے حقوق کے نام نہاد علم بردار جو نعرے لگا رہے ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے، جس سے خواتین کے حقوق کے لیے اٹھنے والی اصل آوازوں پر منفی اثر پڑ رہا ہے. بیسکلی عورت مارچ کو اس لیے فحاشی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو سلوگنز ہیں وہ واقعات ہیں، وہ پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کر ہم نہیں دیکھ سکتے. ان کے نعرے سن کے حیران ہو رہی ہوں. اور ہم چھین کے لیں گے آزادی کی، اور کیا آزادی چاہیے؟ کپڑے اتار کے ناچنے کی آزادی چاہیے کیا؟ جہاں بیچ میں مت بولیے، چلے آپ کو موقع دیجیے. ماروی صاحبہ بیچ میں مت بولو تم. ماروی صاحبہ تیرے جسم میں ہے کیا؟ آپ کے میجورٹی نعرے کیا ہیں؟ مجھے اس طرح مت دیکھو، مجھے اس طرح مت دیکھو، مجھے اس طرح رکھو، مجھے یہ کرو، میرا جسم یہ ہے، میرا وہ ہے. میرا جسم میری مرضی نہیں ہے تو کس کی ہے؟ بیسک میننگ ہے، مطلب یہ ہے کہ میرا جسم ہے تو میری مرضی ہے، کسی اور کی مرضی کیوں ہوگی؟ ایک بہت 2018 میں جو پاپولر سلوگن ہوا وہ تھا میرا جسم میری مرضی. جب ہم بات کرتے ہیں میرا جسم میری مرضی تو ہم بات کرتے ہیں باڈی آٹونمی کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کو اپنے جسم پہ اور یعنی اپنے وجود پہ حق ہونا چاہیے، اور اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا گیا کہ وہ ایک بری عورت ہے اور وہ گندے کام کرنا چاہتی ہے. یہ جا کر کہیں جا کر چپتا ہے کیونکہ پدر سری نظام میں اس نعرے کی کوئی جگہ نہیں. جو اسپیشلی ہمارے معاشرے کے مرد ہیں ان کے لیے میرا جسم میری مرضی ایک پوری طرح ایک سیکشولائز سلوگن بن گیا. ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ سب کے ساتھ چاہتی ہیں. ان کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مادر پدر آزاد یہ عورتیں ہیں، یہ وہ جو ویسٹرن سوسائٹی ہے اس کو لے کر آنا چاہتی ہیں، اور یہ ہمیں ایک طرح سے تھکا دیتا ہے کہ ہم ان کے جواب دیتے رہتے ہیں. لیکن جب وہ بیکلیش آیا اور جب اس کی مخالفت ہوئی اور شرم دلانے کی کوشش کی کہ یہ سلوگن کو آپ بدل دیں یا اس کو ڈائلیوٹ کریں یا آپ اس کو تحفظ، کیوں؟ ہمارے رائٹس بیسڈ ڈیمانڈز ہیں، ہمارے تحفظاتی ڈیمانڈز نہیں ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ آپ نے ہم پر تشدد کیا، جسمانی تشدد،
जहनी तशद्दुद, माली तशद्दुद, कंट्रोल, पावर, अथॉरिटी, सब इख्तियार आपके पास है। हम नारे भी नहीं लगा सकती। जैसे कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि कल बरोज 8 मार्च औरत मार्च के नाम पर एक बेहयाई की बुनियाद रखी जा रही है। इंशाल्लाह हमें इस्लाम को बचाना है। 2020 में ये हुआ था कि मार्च से पहले इंटरनेट पे एक नोट सर्कुलेट कर रहा था जिस पे यही लिखा था, इस मार्च पे आ रही हैं। उन्होंने मार्च की लोकेशन बताई, मार्च का टाइम बताया और कहा कि यहाँ पे बुरी औरतें जमा हो रही हैं और सब यहाँ पे शहरी जो हैं जाएं और इन बुरी औरतों को मज़ा चखाएं। ना तेरा जिस्म ना मर्जी है, उन्होंने गाने अपने बनाए हुए थे, तुम्हें आखिरत में पता चलेगा और तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ अल्लाह का हक है, वो पूरे फुल लाउड स्पीकर्स में वो चल रहे हैं हमारे मार्च के एंट्रेंस पर। They even use religion Islam to justify what they say. ठीक है, माले गनीमत है, इस तरह की बातें ये लोग यूज करते हैं। शुरू से पाकिस्तान के मेरा ख्याल है 1 साल के अंदर अंदर मजहबी जमातों ने हाईजैक कर लिया रियासत को। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ दूसरी जानिब लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा के आप अभी भी देख सकते हैं जूते, डंडे और पत्थर फेंके जा रहे हैं। ईंटों की बरसात हो रही थी, कांच की बोतलों की बरसात हो रही थी। एक बच्चा मेरे सामने था, छोटा सा 3-4 साल का बच्चा, जिसकी आंखों में मिर्चें फेंकी गई। वो सड़कों पे चलते हैं तो वो अपने डंडे लेकर चलते हैं और पत्थर लेकर चलते हैं। हमारे हाथ में छोटा सा कोई प्लेकार्ड होता है या कोई झंडा होता है या अपने नारे होते हैं, बस। मीडिया जो पोर्ट्रे करती है वो ये है कि वो हक पर हैं और ये गुमराह औरतें हैं। आपका नैरेटिव इनवैलिडेट करते हैं। You see कि आपने कुछ किया होगा कि आपको उन्होंने डंडे मारे, आपने कुछ ऐसा किया होगा कि आपको हरास किया गया। फिर वो हमें डराते हैं तो डंडा बरदार औरतें, भाई डंडा बरदार औरतें उनको रोको ना, उनको पकड़ो। हम तो डंडा बरदार नहीं है, हमने तो कभी कोई वायलेंस नहीं किया। औरत मार्च को खत्म हुए 3 दिन हो गए हैं, मगर मार्च के बाद मुल्क में खवातीन के हुकूक और अक़लियतों पर होने वाले जुल्म पर बात होने के बजाय औरत मार्च के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। पेशावर की अदालत ने औरत मार्च के मुंतजमीन के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि 8 मार्च 2021 को इस्लामाबाद में औरत मार्च में तौहीन रिसालत पर मबनी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। किसी ने कराची में मार्च की फुटेज को डॉक्टर किया और उसके ऊपर पूरी एक कैंपेन चली कि इन्होंने ब्लास्फेमी कमिट की है। जहाँ वो रसूल का नाम ले रही है, एक्चुअली में वो अंसार कह रही है, और जहाँ पे पहली वीडियो में वो औलिया कह रही है, एक्चुअली में वो औरिया कह रही है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बाकी रह जाता तो वो एक बुज़दिल रियासत या बुज़दिल शख्स होता है जो कि मजहब का कार्ड प्ले करते हैं। पर आपको पता है कि ब्लास्फेमी का तो यहाँ अगर आप अक्यूज कर दें किसी को तो बस समझें कि आपको सजाए मौत क्या वो देने वाली बात है। आपको कोर्ट से सज़ा नहीं मिलेगी तो कोई भी शिद्दत पसंद आके वो आपको अटैक कर सकते हैं। तो वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी। मैं हूं फैसल खान सूरी। हो सकता है कि मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो क्योंकि यहाँ पे गाने बजाए जा रहे हैं हकूक मांगने के लिए। ये हकूक की जंग लड़ने नहीं निकले, ये बेहयाई को फरोग देने के लिए निकली हुई है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा अपनी बहन को, अपनी बेटी को इस मुआशरे में पालूंगा, क्योंकि मैंने रोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में जाना है और मैं वहाँ जाके रहूंगा। जो लोग भी और जो हुक्मरान इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में बेशर्मी को, उनको तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। आई थिंक हेट स्पीच मुझे लगता है बिकती बहुत ज़्यादा है, सेलिब्रिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, वायरलिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए शायद हर यूट्यूबर, हर कंटेंट क्रिएटर भाग रहा होता है इसके पीछे, क्योंकि उनको लाइक्स चाहिए। इन द एंड इट्स ऑल अबाउट दैट। जैसे ही मार्च करीब आता है एकदम से ऑनलाइन अटैक्स बढ़ जाते हैं। अपनी तरफ से बड़े राइटर्स, स्कॉलर्स, वो एक दफ़ा क्योंकि वायरल हो गया अपनी बदतमीज़ी की वजह से, उसके बाद वो मॉडल रेप्लिकेट करने लग पड़ते हैं। वो वाला जो सर्कल है जो सिर्फ फॉलो करता है पर्सनैलिटीज़ को और अपने जहन से नहीं सोचते हैं, फिर जब वो इस तरह के लोगों को जो कि सारे ड्रामे लिख रहे हैं, वो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, वो उनके मुंह से जब इस तरह की बात सुनते हैं तो फिर
ये वाली थिंकिंग री इन्फोर्स होती है। डिसइंफॉर्मेशन जो है टारगेटेड, वो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो माशरे की जहन साजी करती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, उनके जो सेल्स हैं वो काफ़ी एक ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन्स करते हैं। पोस्टर्स और स्लोगन्स को मैनिपुलेट किया जाता है, चेंज किया जाता है फोटोशॉप करके। औरत मार्च के इनकाद के हवाले से रुकावटें डाल रही है और उन्हें इजाज़त नहीं दे रही। अभी औरत मार्च हुई, इसके ऊपर आपने खुद ही देख लिया कि एक मुख्तलिफ कल्चर नजर आ गया है कि मुल्क में कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। इस मुल्क में इस्लाम, इस्लामी तहजीब और कौमी तहजीब को पामाल होने के तमाशे नहीं देख सकेंगे। जब हम देखते थे कि कौन लोग रीट्वीट कर रहे हैं, या तो वो टीएलपी से एसोसिएटेड होते थे या फिर मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के लोग होते थे, पर लाइक टीएलपी जैसी ऑर्गेनाइज्ड, वो तो बोल के आपको अटैक करते हैं, वो तो बताते हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ हैं एंड वी आर आफ्टर यू। ट्रेंड्स तो रिमूव हो जाते हैं, बट जो लोग जो शायद न्यूट्रल थे, अब वो भी उनकी साइड पर हो गए होते हैं। ये समझते हैं कि इनको दबा के रखो, इनको पीस के रखो, फिर हमारी इजारादारी और हमारी हुक्मरानी रहेगी। तो आप जब इस सोच के साथ, इस ज़हनियत के साथ, इस माइंडसेट के साथ जब आप आएंगे, चाहे कोई भी आपका शोबा हो, आपकी प्रोफेशन कुछ भी हो, तो वो एक हम और वो, अस एंड देम की एक तफरीक आ जाती है। में फिर ये हुआ कि उन्होंने हमें कम्प्लीटली चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको आने नहीं दिया। मिस इन्फॉर्मेशन हमारी स्टेट फैला रही थी। लोग जब आ रहे थे पार्टिसिपेंट्स, उनको कहते हैं कोई मार्च नहीं हो रहा, वापस चले जाएं। एनओसी लेकर आओ। अच्छा जी ठीक है, एप्लीकेशन लिख दी। 3 महीने पहले एप्लीकेशन लिखकर आखिरी मिनट तक नहीं आनी थी और नहीं आई। जब वो रुकावट बनना चाहती है तो वो बिल्कुल यकदम ख़वातीन की तहरीक को बंद कर देती है या ख़वातीन की तरक्की को ना पीछे हटा देती है। अगर ये 3 गिरोह, मर्द, स्टेट या मजहबी सियासत, ख़वातीन की तहरीक में रुकावट डाल दे या इनकी शनाख्त को दूसरी तरफ खींच दे, तो फिर वो इंटरसेक्शन जो है वो हमारी रुकावट बन जाती है, बजाय कि वो हमारी स्ट्रेंथ बने। और इसी वजह से औरत मार्च जारी रहेगी। ये एक दिन का मेला नहीं है, ये एक दिन का मार्च नहीं है। ये निकलना औरतों का याद दहानी कराता है कि अभी भी बहुत सी ऐसी जगहें बाकी हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जो हम तादाद में शायद हमारी कमी आपको नजर आती हो, हमारे जज्बे में और जुनून में रत्ती बराबर कोई कमी नहीं आ रही। हम फेमिनिस्ट हैं और थे और रहेंगी, लेकिन हमने इसको एक रेडिकल लिबादा नहीं उड़ाया। जब तक पिदरशाही निज़ाम गैर मसावी रहेगा, आप चाहे हमारे ख़िलाफ़ कोई भी धमकियां दें या मुखालफत करें, तो हम तो पब्लिक स्पेस में आएंगी और अपने हकूक़ मांगेंगी। अगर आपके ख़िलाफ़, आपकी तहरीक के ख़िलाफ़ मैक्सिमम अपोजिशन आ रही है, मुखालफत आ रही है हर लिहाज से, आप समझ रहे हैं आपकी कामयाब तहरीक है, फिर तो आपको डटे रहना चाहिए। डोंट गिव अप, बिकॉज आपकी मुखालफत अगर सब कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग राइट।